So we were discussing chapter 4, and in chapter 4 we discuss about Heckscher-Ohlin model. Okay. Anyone remember what is Heckscher-Ohlin theory? कोई एक्सप्लेन करेगा कि Heckscher-Ohlin theory क्या है? यस, कौन एक्सप्लेन करने जा रहा है? किसी को याद नहीं है? Heckscher-Ohlin theory सिंपल वर्ड में बता दें क्या चीज? Hello sir, can you hear me? जी बोलें। Sir, Heckscher-Ohlin theory basically ये होती है कि जो कंट्री एक माइक को करीब कर लें अपने। Yes sir, can you hear me now? यस यस। सर इस थ्योरी में हम ये देखते हैं कि कंट्री ज़्यादातर एक कंट्री वो चीज़ एक्सपोर्ट करती है जिसमें वो एफिशिएंटली जो चीज़ वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके नहीं सर ये सबसे तो नहीं ज़्यादा है, जो Heckscher-Ohlin एक theory। प्रोड्यूस नहीं नहीं a country will specialize and export the commodity whose production requires the intensive use of nations abundant factor ना, उसका जो abundant और जो cheap factor है उसका intensive use होगा तो वही commodity में वो specialize करेगी और वो उसको export करेगी। For example, if a country is labor abundant, then labor abundant country will export which type of good? Yes. Agriculture. Labor intensive good. Labor intensive good. ठीक है. And capital abundant country will export capital intensive or import labor intensive good. And last time we also did a numerical example and we also studied graphically. This is the Heckscher-Ohlin theory which we discussed last time in detail. And then we discuss how to know that this country is labor abundant, this country is capital abundant. So what is the method? What we have to do to know that this country is labor abundant, this country is capital abundant? कैसे पता चलेगा? Sir, by drawing the production possibility curve, we can know about this. We have to calculate something, na? What we have to calculate? कैपिटल को लेबर से डिवाइड करते हैं। Yes, to divide capital over labor. Yes. So if we calculate the capital labor ratio of both countries, and the country with a higher capital labor ratio would be considered as capital abundant country. ठीक है, capital abundant country. Okay. इसी तरह commodities का जो हम कहते हैं कि ये labor intensive commodity है, this is capital intensive commodity. For commodities also we have to calculate capital labor ratio, and the commodity with a higher capital labor ratio would be considered as capital intensive commodities, and the other commodity would be considered as labor intensive commodity. ये भी हमने कर लिया था last time, and then we also discussed numerical example. This we did last time. और practice जो एक्टिविटी है वो भी हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. And if we have production possibility frontier, and if this is the labor intensive good, then the shape of production possibility frontier will explain which country is labor abundant, which country is capital abundant, because labor abundant country will produce more
labor intensive good and less capital intensive good. Then related to Heckscher-Ohlin theory, we have factor price equalization theorem, and this theorem says that international trade will bring about equalization in absolute and relative returns to homogeneous factors across the nation. So before international trade, we know that the factor prices are different and commodity prices are also different. Relative commodity prices are also different. But when there is international trade, the relative commodity prices would be same. आपने देखा ना कि यहाँ पे ये relative commodity price है. This is PA is the PX over PY in nation 1, and this PA prime is the PX over PY in nation 2. So relative commodity prices are different, but after international trade you can see that relative commodity prices are same. देखें ना ये yes, PB is the international price ratio ratio, international price ratio for relative prices. So, and this is same for both nations. Okay. So commodity prices, relative commodity prices will equalize after trade, but according to the Heckscher-Ohlin theorem, we also have factor price equalization. Okay, it's called factor price equalization theorem. So international trade will bring about equalization in absolute return and relative return to homogeneous factors across nation. Let me explain this in Word file. So I'm going to share Word file. Okay. So we can say that suppose nation 1 is labor abundant. Nation 2 जो है capital abundant है. Nation 2 is capital abundant और X जो है X is labor intensive. X is labor intensive good, ठीक है, और Y जो है Y is capital intensive. So if we have this case, so what would be the situation for PX or PY in nation 1? This is nation 1 है ये, और then we have PX or PY nation 2. अब मुझे बताएं कि बिफोर ट्रेड जो है ना, what would be the situation here? PX or PY of nation 1 would be less than or greater than. Looking to this situation, nation 1 is labor abundant, commodity X is labor intensive, nation 2 is capital abundant, commodity Y is capital intensive. So then what would be the situation here? Yes.
Less than, I should put here less than or more than? सर px मोर देन होगा py के नेशन वाइड में। मैं तो रिलेटिव प्राइस की बात कर रहा हूँ पूरा, ये पूरा रिलेटिव प्राइस है नेशन वन का, ठीक है। ये लेस देन होगा या मोर देन होगा? नेशन टू के रिलेटिव प्राइस है। नेशन वन का रिलेटिव प्राइस लेस देन होगा नेशन टू से। Yes, because nation one is labor abundant, commodity X is labor intensive, ठीक है। So price of X would be low, price of Y would be high, so this ratio Yes, would sir. be low. This is the situation. Okay. Yeah, this is before trade, and then after trade, what would be the situation? इसका मुझे बता दें कि आफ्टर ट्रेड ग्रेटर देन हो जाएगा। आफ्टर ट्रेड ग्रेटर देन हो जाएगा। सर नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। बीच में क्या साइन में होगा यहाँ? इक्वल टू का इक्वल, यही होता है ना कि बिफोर ट्रेड जो है आपने यहाँ देखा, जो कि ग्राफ में भी देखा था, नेशन वन का जो है वो स्लोप फ्लैटर था, नेशन Yes, टू sir. का जो है ऊपर था। बाद में क्या हो गया, दोनों के सेम हो गया ना, ये रिलेटिव प्राइस जो है। दिस इज द सिचुएशन बिफोर ट्रेड, बिफोर ट्रेड जी। दिस वन एंड आफ्टर ट्रेड दिस वन। यस सर। नाउ बिफोर ट्रेड जो है अगर नेशन वन जो है लेबर इंटेंसिव है, नेशन टू जो है कैपिटल इंटेंसिव है, तो हम अगर देखें वेजेस, वेज इज दी वेज इन नेशन वन वी हैव, ओके, एंड वेज इन नेशन टू। क्या होगा फिर? नेशन वन का वेज है और नेशन टू का वेज है, ये एब्सोल्यूट फैक्टर प्राइस है ना। लेबर की जो लेबर एक इज़ अ फैक्टर एंड वेज इज़ द प्राइस ऑफ लेबर फैक्टर। तो देन मुझे बताएं कि इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, नेशन वन इज़ लेबर अबंडेंट, नेशन टू इज़ कैपिटल अबंडेंट, then what would be the situation here? सर नेशन वन का वेज रेट ग्रेटर देन होगा। नेशन वन का जो है वो ग्रेटर देन होगा। आई थिंक सो। नेशन वन जो है वो लेबर अबंडेंट है या कैपिटल अबंडेंट है? सर लेबर अबंडेंट है। सर नेशन टू का वेज रेट, यस सर, नेशन वन जो है वो लेबर अबंडेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है। कम। तो जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। कम होती है ना। तो फिर ये वेज है, नेशन वन जो है प्राइस ऑफ लेबर है और लेबर इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये वेज जो है, और नेशन टू जो है कैपिटल अबंडेंट है, तो यहाँ पे लेबर कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या साइन आना चाहिए? कम होगी सर, लेस आ जाएगी, लेस देन होगी, लेस देन होगा ना, क्योंकि आप इसको देखें ना, इनको देखें। इसी तरह व्हाट अबाउट रेंटल रेट, यहाँ पे क्या साइन आएगा? सर यस, रेंटल में सर नेशन वन में ये भी लेस होगी क्योंकि कैपिटल तो कम है, तो लेस होगी, ये भी लेस होगी। नेशन टू, नेशन वन का जो रेंटल रेट है वो नेशन टू के रेंटल रेट से लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? ग्रेटर देन की आवाज आ रही है। और लेस देन में भी है कोई? किसी का आंसर लेस में भी है? यहाँ बताएं। लेस आप आंसर है, बताएं लेस कैसे होगा? ये नेशन वन जो है लेबर अबंडेंट है और कैपिटल इसके है ना,
यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो जो चीज़ कम होती है उसकी प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन, दिस इज द सिचुएशन बिफोर ट्रेड। ये जो है सिचुएशन है बिफोर ट्रेड ना। सर ये लास्ट वाली सिचुएशन आप एक दफा क्लियर कर दें, मुझे क्लियरिटी नहीं है इसमें। यस सर, ये नेशन 2 क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, तो नेशन 2 में कैपिटल की प्राइस कम होगी ना, इसलिए ये देखिए यहाँ लेस देना है इसका। और नेशन 1 जो है लेबर अबंडेंट है, तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो स्केर्स फैक्टर है, इसलिए रेंटल रेट हाई होंगे। जिस तरह आप जो है जो प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर, अब पाकिस्तान एक लेबर अबंडेंट है, तो यहाँ पे वेजेस लो हैं और रेंटल रेट हाई है, ठीक है। और इस कंट्री को आप ले लें जापान, जापान में वेजेस ज़्यादा हैं, रेंटल रेट कम है, कैपिटल की प्राइस कम है, ठीक। यस सर, अब क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। दिस इज द सिचुएशन बिफोर ट्रेड। और इसी तरह अगर ये तो दीज आर दी एब्सोल्यूट प्राइसेस, ये एब्सोल्यूट प्राइसेस हैं। हम इसी तरह रिलेटिव प्राइस की भी बात कर सकते हैं ना, तो मैं अभी जो है ना रिलेटिव प्राइस, कॉपी, W और R जो है ये रिलेटिव प्राइस। अब ये बताएं कि इसमें क्या आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा? एब्सोल्यूट में तो आपने मुझे बता दिया, इस पे क्या होगा, रिलेटिव प्राइस। यस, लेस देन और ग्रेटर देन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, मुझे आंसर चाहिए कि इसको देखते हुए आप मुझे बताएं कि ये रिलेटिव, ये तो रिलेटिव प्राइस है, ये एब्सोल्यूट प्राइस है, तो वेजेस और रेंटल रेट इन नेशन 1 है, ये वेजेस और रेंटल रेट इन नेशन 2 है, तो हेयर आई शुड पुट अ साइन फॉर लेस देन और ग्रेटर देन बिफोर ट्रेड। सर N1 लेस देन होगा और N2 ग्रेटर। नेशन 1 कुछ लेस होगा और नेशन 2, because you see wages are low in nation 1 and rental rate are high in nation 1, so numerator is low, denominator is high, ratio would be low, ठीक है। इस नेशन में wages are high, numerator is high, denominator is low, so ratio would be high, so here we have to put less than. So this is the situation before. So this is the situation before international trade. Now, according to factor price equalization theorem, when there is international trade, wages in nation 1 would be equal to wages in nation 2. Rental rate in nation 1 would be equal to rental rate in nation 2. So these absolute prices will equalize and relative prices will also equalize after international trade. So let's see. After trade, जो है ना in nation 1, let's see what would be the situation. Nation 1 जो है after trade क्या करेगा, what will happen to the production of X and Y। मुझे बताएं कि
what will happen? Production of X will increase या decrease? इंक्रीज कर देगा नेशन वन अपनी प्रोडक्शन ऑफ एक्स को, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी तो करेगा. ठीक है, तो this means after trade यस जब X की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर X किस किस्म की कमोडिटी है? यस जी सर. लेबर इंटेंसिव गुड है ना? लेबर इंटेंसिव. यस सर, लेबर इंटेंसिव गुड है. फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर हो जाएगी. यस सर. क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एक्स जब बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस. व्हाट विल हैपन टू वेजेस? सर वेजेस लो हो जाएंगी, डिक्रीज होंगी. अच्छा, ज़्यादा increase हमें हो लेबर जाएंगे. चाहिए. जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है. जिस भी है बढ़ेगी. ना, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी तो प्राइस बढ़ जाती है ना. Yes, और sir. लेबर की यस सर. डिमांड इंक्रीज हो गई है तो wages लेबर की increase हो प्राइस जो जाएगी. है वेजेस है, तो वेजेस विल वेजेस इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज. ये हो गया. ये तो क्लियर है ना. इसी तरह यस सर. अब हम देखते हैं नेशन 2 में व्हाट विल हैपन टू प्रोडक्शन ऑफ वाई. वाई की प्रोडक्शन पे क्या होगा आफ्टर ट्रेड? ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सर इंक्रीज करेगा. हैं? इंक्रीज सर करेगा. नेशन टू में, नेशन वन में. नेशन 1 की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ नेशन 1 की बात हो सर रही है. नेशन वन की बात हो रही है तो यहाँ पे डिक्रीज होगी वाई की प्रोडक्शन. हाँ, क्योंकि नेशन 1 जब स्पेशलाइज कर रहा है, जब नेशन 1 एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा होता है, इसका मतलब है जब प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर पे आप मूव करेंगे एक्स की साइड पे तो वाई की प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी ना. यस सर. प्रोडक्शन Yes, ऑफ वाई डिक्रीजेस. यस. सर फिर डिमांड फॉर लेबर भी डिक्रीज हो जाएगी. कैपिटल होगी. डिक्रीज हो जाएगी. डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज होगी या डिमांड फॉर कैपिटल डिमांड डिक्रीज फॉर होगी सर. कैपिटल. कैपिटल डिक्रीज होगा क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है ना. डिमांड फॉर कैपिटल Yes, sir. डिक्रीजेस. फिर रेंटल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी डिक्रीज सर होगी रेंटल सर. रेट भी डिक्रीज हो जाएगा. ये भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, यस सर. तो ये तो क्लियर हो गया ना. अब ये मुझे बताएं कि अगर नेशन 2 का बात कर लेते हैं. चलें इसी चीज़ को मैं कॉपी करके नेशन 2 की बात करते हैं. नेशन 2 में क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स, सर डिक्रीज हो जाएगी. हाँ, प्रोडक्शन ऑफ एक्स जो है वो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ. प्रोडक्शन ऑफ एक्स डिक्रीजेस क्योंकि नेशन 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट है एंड नेशन 2 विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई. तो ये जो है एक्स की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. व्हाट विल हैपन टू डिमांड फॉर लेबर? सर डिमांड फॉर लेबर भी डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज हो जाएगी. वेजेस वो भी डिक्रीज होंगे सर सर. वेजेस भी डिक्रीज हो जाएंगी. भी डिक्रीज होगा. और वाई की प्रोडक्शन इंक्रीज वाई की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी सर.
की इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये कैपिटल अबंडेंट कंट्री है एंड वाई इज कैपिटल इंटेंसिव गुड, सो डिमांड फॉर कैपिटल भी इंक्रीज डिमांड और फॉर रेंटल रेट भी कैपिटल बढ़ेगा। विल इंक्रीज और फिर रेंटल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। किया जाएगा और रेंटल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अब Yes, हम sir. देखते हैं कि आफ्टर ट्रेड क्या ये इक्वलाइज हो रहे हैं नहीं। अब आप मुझे बताएं कि नेशन वन में एक्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो रही है, वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जबकि नेशन टू में वेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब पहले बिफोर ट्रेड क्या था कि नेशन वन के वेजेस कम थे, नेशन टू के वेजेस ज़्यादा थे। अब क्या हो रहा है, नेशन वन के वेजेस बढ़ रहे हैं, ये जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस सर, इक्वल होगा इम्पैक्ट। इक्वल हो जाएंगे ना, देखा ना, ये After कम है तो ये कम वाली चीज़ बढ़ रही है और ज़्यादा वाली चीज़ जो है वो कम हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है नेशन टू का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर ट्रेड जो है वी कैन से कि आफ्टर ट्रेड आप इस पे एग्री कर रहे हैं कि ये इक्वल हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस? Yes. इसमें क्या हो रहा है कि ये rental नेशन वन का, हाँ नेशन वन का रेंटल रेट ज़्यादा था तो ये अब डिक्रीज हो रहा है, yes, और sir. तो नेशन ये भी इक्वल हो टू का रेंटल रेट कम था तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये जब डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा तो दिस मीन्स इट इक्वलाइज। सो वी हैव प्रूव दैट after international trade the absolute return to homogeneous factor will equalize। देखिए ना, ये भी वेजेस भी इक्वलाइज हो जाएंगे और रेंटल रेट भी इक्वलाइज हो जाएगा। और रेंटल, ये रिलेटिव रिटर्न की बात कर लेते हैं अभी। अब आप देखें नेशन वन में क्या, ये जो था लेस था, ठीक है, ये जो था वो लेस है और ये जो है हाई है। अब ये लेस है लेकिन क्या हो रहा है, आफ्टर ट्रेड वेजेस जो हैं दे आर इंक्रीजिंग, रेंटल रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो फिर ये रेशो जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आफ्टर ट्रेड वेजेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है, वेजेस आर इंक्रीजिंग, रेंटल रेट इज डिक्रीजिंग, सो दिस रेशो विल इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशन टू में, ये नेशन टू है, वेजेस आर डिक्रीजिंग एंड रेंटल रेट इज इंक्रीजिंग, सो दिस रेशो विल डिक्रीज। ठीक है, वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं तो आफ्टर ट्रेड विल इक्वलाइज। So we have proved that international trade will bring about equalization in absolute return and also in relative returns to homogeneous factors across nation. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now again I will share the PowerPoint slide. So we have proved this. Wages and other factor return will be same after specialization and trade. So labor abundant countries export goods that are labor intensive in their production. Capital abundant countries export goods that are capital intensive in their production. So exported commodity experience an increase in their price related to the target situation. Okay, and then the factor prices are equalized. Then we have Stolper-Samuelson theorem, and this theorem says what will happen to the income inequality. अब आप मुझे ये बताएं कि आफ्टर ट्रेड
who will benefit? Which factor will benefit in labor abundant country? In nation in one or capital nation two? नेशन वन मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो जब ट्रेड होगी इंटरनेशनल ट्रेड होगी, देन विच फैक्टर विल बेनिफिट इन लेबर अबंडेंट कंट्री? लेबर विल बेनिफिट और कैपिटल? सर कैपिटल। सर लेबर को भी बेनिफिट क्योंकि वो लेबर को एक्सप्लोर करेंगे। किसके रिटर्न में इजाफा होगा? लेबर के रिटर्न में इजाफा हो रहा है या कैपिटल के? कैपिटल, अबंडेंट कंट्री सर कैपिटल के रिटर्न्स में इजाफा हो रहा है, इसलिए कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल के रिटर्न में इजाफा हो रहा है, आप ये भूल गए? मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर लेबर में इजाफा होगा शायद। ये देखें ना, आफ्टर ट्रेड क्या हो रहा है? वेजेस इंक्रीजेस, रेंटल रेट डिक्रीजेस। इसका मतलब है कि लेबर के रिटर्न में इजाफा हो रहा है और कैपिटल के रिटर्न में कमी हो रही है। ओके, तो ये लेबर अबंडेंट कंट्री है ना, नेशन वन। तो दिस मीन्स के, और इसी तरह ये जो नेशन टू है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो नेशन टू में हम देख रहे हैं कि रेंटल रेट इंक्रीजेस, तो कैपिटल के रिटर्न में इजाफा हो रहा है और लेबर के रिटर्न में कमी हो रही है, डिक्रीजेस। सो दिस मीन्स, ये जो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम है, दिस सेज कि व्हेनेवर देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड द अबंडेंट फैक्टर विल बेनिफिट एंड द स्केयर फैक्टर विल सफ़र। अब आप देखें ना, इस कंट्री का जो अबंडेंट फैक्टर है वो लेबर है और ट्रेड की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है। इस कंट्री का, नेशन टू का अबंडेंट फैक्टर जो है वो ये है, कैपिटल है। तो अबंडेंट जो फैक्टर है कैपिटल, उसके रिटर्न में इजाफा हो रहा है और स्केर्स फैक्टर के रिटर्न में जो है वो कमी हो रही है। तो दिस इज द स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम कि व्हेनेवर देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड then the abundant factor of the country will benefit because their return will increase and the scarce factor will suffer because their return will decrease. Is this clear? Yes sir. ठीक है ना, क्लियर है। अब मुझे बताएं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लेबर अबंडेंट होते हैं या कैपिटल अबंडेंट होते हैं? सर वो लेबर डेवलपिंग कंट्रीज लेबर अबंडेंट होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कैपिटल लेबर अबंडेंट, ये कैपिटल अबंडेंट, लेबर अबंडेंट होते हैं। नहीं सर, लेबर अबंडेंट होते हैं। ये लेबर अबंडेंट है ना, हमारे पास लेबर बहुत सरप्लस में है, Yes, sir. अनएम्प्लॉयड। तो और Yes, sir. जो Sir? डेवलप कंट्रीज हैं, एक्सक्यूज मी सर, बोलें। पाकिस्तान, इंडिया, ये सब तो डेवलपिंग कंट्री तो नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज तो नहीं है। फिर किस मतलब किसी ये country की डेवलपमेंट? ये डेवलप्ड अंडर तो डेवलप। नहीं है, अंडर डेवलपमेंट में आएगा ना ये तो। तो सर भी तो ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग। वही सर क्या डेवलपिंग कह है रहे हैं आप, ना। प्लीज रिपीट कीजिएगा। एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, एक है डेवलप कंट्रीज। तो ये तो वही है ना जो अभी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही है सर, सॉरी। अभी ये जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, जर्मनी है, ये क्या है? ये डेवलप कंट्रीज है ना, डेवलप हो चुके हैं। यस सर। ठीक है, हम Yes, लोग sir. तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरह तक पहुंच जाएं, हमारा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे जो है इकोनॉमी का साइज और हमारे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको हम यूटिलाइज करके जो है, तो दिस मीन्स के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लेबर अबंडेंट होते हैं ना। यस सर। डेवलप कंट्रीज हैं वो कैपिटल अबंडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स है वो कैपिटल अबंडेंट है। तो जब ट्रेड होगी तो डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वो लेबर अबंडेंट हैं और ट्रेड के बाद जो है वेजेस इंक्रीज होगा, तो लेबर का जो है वो बेनिफिट होगा ना। तो लेकिन जो कैपिटल ओनर हैं दे विल सफ़र, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कैपिटल ओनर है वो सफ़र करेंगे क्योंकि उनके रिटर्न जो है वो कम हो रहे होंगे।
डेवलप कंट्रीज में क्या होगा कि हु विल सफ़र डेवलप कंट्रीज में, कैपिटल अबंडेंट कंट्री में? सर लेबर विल सफर. Labor will suffer because their wages will decrease, and capital owner will gain because their rental rate will increase. तो इसलिए जो फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप कंट्रीज में जो लेबर यूनियन है वो उसको अपोज करते हैं कि तो दे डोंट लाइक फ्री ट्रेड, क्योंकि उनको पता है कि अगर फ्री ट्रेड हो गई तो डेवलप कंट्री लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी वो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा, लेबर इंटेंसिव. ये डेवलप कंट्री है सपोज कैपिटल अबंडेंट. तो कैपिटल अबंडेंट जो कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और कैपिटल की डिमांड में इजाफा हो जाएगा और रेंटल रेट में इजाफा हो जाएगा. लेकिन जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी और फिर वेजेस कम हो जाएंगे. इसलिए जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो लेबर यूनियन है वो अपोज करते हैं इसको. और इसी वजह से आप देखें कि डेवलप कंट्रीज़ में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. जो गैप है ना रिच और पुअर का वो बहुत ज़्यादा है. तो एक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी ना, एक है इनकम इनइक्वालिटी. पॉवर्टी तो ये है ना कि उनको जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, या इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही या एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही, तो वो तो ठीक है. तो डेवलप कंट्री में पॉवर्टी नहीं है. ये जो पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम है. और लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इशू है वो इनकम इनइक्वालिटी का है. और वो जो इनकम इनइक्वालिटी और इनकम का जो गैप है वो जो है वो इसी वजह से हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड हुई, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड हुई. आपने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस की, उसको एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल इंक्रीज़ हुई और रेंटल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो जो कैपिटल ओनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए और जो गैप है कैपिटल ओनर और एक वर्कर का वो बहुत ज़्यादा होगा. अब वर्कर पुअर नहीं है, वर्कर ऐसे नहीं है कि उसको खाने को नहीं है, खाने को है, सब कुछ है, उसके पास गाड़ी भी है, लेकिन जो गैप है ना, जो एक कैपिटल ओनर के पास जो वेल्थ है और जो वर्कर के पास वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो वो यही जो स्टॉर्पर-सैमुअल्सन थ्योरम है, दिस टॉक अबाउट कि व्हेनेवर देयर इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो दिस विल इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द फैक्टर यूज इंटेंसिवली इन इट्स प्रोडक्शन. ये उस रिटर्न के फैक्टर में इजाफा हो जाएगा जो कि उसकी प्रोडक्शन में इंटेंसिवली यूज़ होता है. तो अबंडेंट फैक्टर के जो रिटर्न है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा. तो यही चीज़ आगे जो है ना इस स्लाइड में जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है वो इसमें आगे एक्सप्लेन की हुई है. लेबर अबंडेंट कंट्री विल सी एन इंक्रीज इन वेजेस बट अ फॉल इन द रिटर्न टू कैपिटल. यही चीज़ अभी हमने डिस्कस की. while the capital abundant country will experience the opposite pattern of change. ठीक है, तो developed nations are expected to be capital abundant. Therefore, following the opening of trade, the return to capital in the developed country is expected to increase and wages are expected to fall. अभी जो हमने देखा nation 2 की situation में. So this pattern of change should worsen inequality in developed country. तो इसकी वजह से जो है वो जो inequality है वो further worsen हुई, deteriorated. This change in inequality should be the opposite. जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हुई है क्योंकि
ट्रेड से पहले इनक्वालिटी ज़्यादा थी, लेकिन ट्रेड के बाद जो है वो वेजेस में इजाफा हुआ और रेंटल रेट में कमी हुई, तो वो जो गैप है इनकम का वो कम होता गया और इस तरह इनकम इनक्वालिटी भी जो है कम होती गई। और दिस विल होल्ड इफ द अजम्पशन ऑफ एचओ थ्योरी होल्ड। अब आपने देखा ना, हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम डिस्कस किया। दैट थ्योरम सेज कि international trade will bring about equalization in absolute and relative return to homogeneous factor across nation। तो वेजेस सेम हो जाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं ट्रेड हो रही है लेकिन वेजेस तो सेम नहीं है। क्या पाकिस्तान के वेजेस और जापान के वेजेस सेम है वर्कर की? नहीं है ना। इसी तरह जो है वो क्या रेंटल रेट सेम है? नहीं है। तो रीज़न क्या है? Why wages are not same for homogeneous factor? एक जो है एक जो है इंजीनियर का वेज जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, वो जापान और यूएस में जो इंजीनियर का वेज है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक डॉक्टर की सैलरी पाकिस्तान में और एक डॉक्टर की सैलरी यूके में, आप देखें इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम तो ये कहता है कि ये ट्रेड के बाद सेम हो जानी चाहिए। ट्रेड भी हो रही है तो ये सेम क्यों नहीं हो रहा है? वजह? यस, एनी आंसर? बताएं, किसी को है आंसर? If you answer this, I will give you +1 bonus mark. सर आपने एक बार सर रिपीट करेंगे? मैं क्या चीज़ रिपीट करूं? सर क्वेश्चन। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मैंने 2-3 मरतबा इस क्वेश्चन को कहा। माय क्वेश्चन इज कि जो अभी हमने पढ़ा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सेज दैट आफ्टर ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड द फैक्टर प्राइसेस वुड बी सेम, एब्सोल्यूट टर्म में भी सेम हो जाएंगी और रिलेटिव टर्म में भी सेम हो जाएंगी। तो मेरा सवाल ये है कि अभी ट्रेड हो रही है कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद भी जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो सेम नहीं है। चले हम एक फैक्टर की प्राइस ले रहे हैं, डॉक्टर की जो है सैलरी ले रहे हैं। एक डॉक्टर की सैलरी पाकिस्तान में और एक डॉक्टर की सैलरी यूएस में, ये सेम नहीं है। तो इंटरनेशनल हमारा यूएस जो है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारा ट्रेड जो है यूएस से हो रहा है, ट्रेड भी हो रही है, इसके बावजूद भी फैक्टर प्राइसेस सेम नहीं हो रही। वजह, रीज़न क्यों नहीं हो रही सेम? क्या थ्योरम गलत है? जी, इसी को एक्सप्लेनेशन होगी ना, वो एक्सप्लेनेशन मुझे बता दें। नो वन नोज? सर शायद इसलिए क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड तो कर रहे हैं बट हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो, ट्रेड बैलेंस तो बहुत मुश्किल होता है। या तो ट्रेड सरप्लस में होगा या ट्रेड डेफिसिट में होगा। डेवलपिंग कंट्रीज का तो वैसे ही ट्रेड डेफिसिट में होता है, वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जी सर, मे बी हर कंट्री का जो एक लेबर लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। वहाँ पे हर कोई सेम प्रोफेशन को उतना पे नहीं करता। कंपैरेटिवली वहाँ पे मे भी पाकिस्तान में अगर डॉक्टर्स को ज़्यादा, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर पाकिस्तान में, एक एमबीबीएस डॉक्टर यूएस में, सेम एक्सपीरियंस है, सेम कॉम्पिटेंसी है, सेम एफिशिएंसी, सेम पाकिस्तान का डिफरेंट है। लेबर लेवल की बात होती है ना, वहाँ पे कौन से प्रोफेशन ज़्यादा हाई? मैं वही तो कह रहा हूँ कि लेवल सेम है ना। अच्छा, सर करेंसी वैल्यू की वजह से, सर करेंसी वैल्यू की वजह से कि डॉलर आप जब
आप जब हम कह रहे हैं कि सेम नहीं है, इसका मतलब है कि हम जो पाकिस्तानी डॉक्टर है उसकी वेजेस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में, फिर देख रहे हैं ना सेम नहीं है। अदरवाइज हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे अगर सेम करेंसी में दोनों के वेजेस ना हो। चलें, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बता दूं, ठीक है? हाँ सर बोले। सर ये तो नहीं कि वो यूके जो है वो कैपिटल इंटेंसिव और पाकिस्तान लेबर, यूके कैपिटल अबंडेंट है ना। हाँ तो उससे अबंडेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है? Yes, अभी जो sir. हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, नेशन 1 लेबर अबंडेंट था, नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट था, तो दोनों में वेजेस सेम हो गई ना। सर वहाँ पे सर नहीं सर, यहाँ की वेजेस ज़्यादा होंगी और वहाँ का रेंटल रेट ज़्यादा होगा। तो ट्रेड से पहले था ना, वहाँ का वेजेस ज़्यादा है, यहाँ की वेजेस कम, लेकिन ट्रेड के बाद तो इक्वल हो गई थी ना। जी सर। हाँ चले मैं बता देता हूँ। देखें, रियल वर्ल्ड में जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक्शर-आलम थ्योरम के अजम्पशन है वो होल्ड नहीं करते। सबसे जो बड़ा अजम्पशन ये है कि देयर इज़ फ्री ट्रेड, तो रियलिटी में फ्री ट्रेड तो नहीं है ना, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ना। तो दैट्स वाई ना एक चीज़ कि जो है वो फ्री ट्रेड अगर एग्जिस्ट करे तो फिर जो है ना देन वी विल मूव टुवर्ड्स, और बाकी अजम्पशंस भी एक्शर-आलम थ्योरम के वो होल्ड करें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। लेकिन आप देखेंगे कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ट्रेड इतनी फ्री नहीं थी, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। लेकिन अब जो है वो काफ़ी, जो 50 साल पहले जो गैप था वेजेस का और रेंटल रेट का, अब वो गैप कम हो गया है। हो सकता है 50 साल बाद जो है ये गैप और बिल्कुल कम होके ना होने के बराबर रह जाए। तो दिस इज़ पॉसिबल। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड। जिस तरह एक अजम्पशन थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ज़ीरो, तो रियलिटी में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो नहीं है ना। लेकिन आप देखें कुछ चीज़ों में वी हैव मूव टुवर्ड्स ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब पहले अगर एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स भेजना था तो अच्छे खासे उसके एक्सपेंसेस होते थे। अब जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो है, हम उसको जो है वो स्कैन करके ईमेल से अटैच करके भेज देते हैं और वो डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाता है। तो एक ईमेल की क्या कॉस्ट है? कुछ भी नहीं।